Gen Z. Those who are here of the Gen Z club, can you just raise your hand? Oh my god. For Gen Zs, can we have a big round of applause, everyone? Come on. Because now onwards, we're gonna have something really crazy on the stage. It is all about how creators to brands and, of course, the rise to Indian Gen Z. I would like to request the moderator to please kindly come up on the stage along with our panelists. Here we have the first panelist, Jagriti Pava, the content creator and influencer. Everyone, please put your hands together and let's welcome Jagriti on the stage. Along with Jagriti, I would like to request Jay Arora, the content creator, Tech Ella, to please kindly come up on the stage and join us. Everyone, please put your hands together. And here we have our moderator, Hirdesh Madan, the co-founder of Hit Bullseye. Thank you so much, and I would like to request Mr. Desh to please kindly take over for this crazy chapter we call Creators to Brands and, of course, the rise to Gen Zs. Thank you. Thank you, and welcome Jagriti and Jay. And there was a time that the definition of a founder was we worked on a product, हम उसको बनाते थे, फिर उसके लिए हम advertisement करते थे, और finally it takes a lot of effort. We used to spend so much of money on the newspapers, the TV ads, and make it a brand. But today in the Gen Z world, we are living in a different world. First we create a traction, then actually the brand is created, and this doesn't take years, this doesn't take a lot of capital investment. And today we have two Gen Z youth icons. और मैं statistics बताता हूँ. We have Jay, who has Insta followers of 3.8 million. Correct me if I'm wrong. YouTube subscribers of 10 million. Jagriti, we have 1.1 million Insta followers and YouTube 40.7 million. Big round of applause. So today in our conversation, we'll try to find कि होता कैसे है. हमारी तो रील 50 लोग भी लाइक करते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, right? And we feel so happy. So my first question, and I'll start from Jay, you. I think it's not that after +2 we think कि चलो हमें इस फील्ड में आना है, right? You must have carved out some path for you. तो फिर ये क्या हुआ, कब ये शुरू हुआ, कैसे आप इस फील्ड में आए, थोड़ा अर्ली डेज we want to know from you. तो आई नेवर थॉट कि मैं कभी वीडियो बना रहा हूँगा, मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँगा, एंड ये मेरी कोई हॉबी भी नहीं थी. कभी कैमरे पे आना वाज नॉट माय थिंग. आई वाज वेरी इंट्रोवर्ट फ्रॉम माय स्कूल डेज. तो जब मैं स्कूल में था, बट एक चीज़ थी कि मेरे को टेक का बहुत ज़्यादा शौक था. आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ टेक, गैजेट्स मुझे बहुत पसंद थे. तो जब मैंने स्कूल में था, हमने अपना पहला कंप्यूटर लेके आया, एंड्रॉयड फोन लेके आया, उस फोन को मैंने रूट कर दिया, उसमें कस्टम फोन डाले. आई यूज्ड टू डू थिंग्स जो आप लोगों को पता भी नहीं होती क्या होता है ये. तो वो सब मुझे अच्छा लगता था. देन इन द कॉलेज डेज आई थॉट कि मुझे कॉलेज में मेरे से बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती थी, मुझे रट्टे मारने बिल्कुल नहीं आते थे. तो मुझे तो लगा कि मुझे अपना ही कुछ करना है. आई स्टार्टेड विद यूट्यूब चैनल, टेक यूट्यूब चैनल, और तब से मुझे ये समझ आया कि बात थी बहुत मिसिंग कि आम लोगों को टेक नहीं समझ आता था, उनको वो बोरिंग लगता था. तो आई थॉट कि आम लोगों के लिए टेक को इतना इंटरेस्टिंग बनाया जाए कि उनको लगे ही ना ये बोरिंग और वो एंजॉय करें. आई ट्राइड, और अभी तक वो वैसे ही हम ट्राई करें कि आम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करें, जनरल ऑडियंस, बाकी सिर्फ जो जिनका माइंड चलता है टेक में उनको समझाएगा. ग्रेट. सो जागृति, कैसे शुरुआत हुई आपकी? How you got into this? I was a very active student. मुझे cultural activities, mono acting, so I loved being on stage. ये सब स्कूल में तो चला, बट कॉलेज में कॉलेज मेरा चंडीगढ़ ही था, एसटी कॉलेज. तो वहाँ पे ही लैब में बैठे बैठे चलता था दिमाग में क्या करूँ ऐसा. तो आई स्टार्टेड विद एक्सप्लोरिंग चंडीगढ़. जो आज फूड ब्लॉगर्स या फिर ट्रैवल ब्लॉगर्स कर रहे हैं, मैं उस टाइम पे कर रही थी. इट वॉज बैक इन 2015-16.
तो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और वहाँ के हॉट स्पॉट्स कवर करने शुरू किए। सुखना लेक, उसकी हिस्ट्री, हम सब क्या कर रहे हैं। तो मेरा हमेशा से ही लाइक आई लव डूइंग दिस एंड इवेंचुअली धीरे धीरे करके मैं पढ़ाई भी कर रही थी, पढ़ाई में अच्छी थी, तो मैंने अपना एग्ज़ाम सब मास्टर्स बायोटेक में की और रिसर्च भी की काफ़ी टाइम एक बहुत बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट में। बट मुझे वहाँ पे समझ आया कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस। मेरा दिल हमेशा से इधर ही था, तो दैट्स वाई मैं साइड बाय साइड कंटेंट क्रिएशन भी कर रही थी। विद टाइम आई रियलाइज कि दिस इज इट, इससे हम सस्टेन कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं एंड आई कंटिन्यू दैट वे। Great. So we have two examples in front of us जिन्होंने अपने दिल की सुनी और वो किया जो वो करना चाहते थे। वो ट्रेडेड पाथ पे नहीं चले कि नहीं बस वो जॉब ही करनी है। एंड आई थिंक जो अगला क्वेश्चन मेरा है, तो देखिए व्हेन यू गॉट इनटू दिस फील्ड ऑफ स्टार्टिंग में तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट जनरेट होता था, इवेंचुअली नाउ इट्स मोर ऑफ अ शॉर्ट फॉर्म व्हिच इज कंज्यूम्ड। तो ऐसा तो नहीं होता कि पहला ही वीडियो हिट हो जाता है या पहला ही आपका पोस्ट। तो जो आपकी जर्नी थी जहाँ पे आपने, मैं कहूँगा स्ट्रगल भी की, या मैं कहूँगा दूसरा शब्द उसका मैं कहूँगा कि वो लर्निंग फेज था कि किस तरीके से वो एल्गो जो है हमारे सोशल मीडिया का क्रैक कैसे किया, क्या चलता है और क्या नहीं चलता। बहुत कुछ नेट पे मिलता है पर वो मिलता है तो वो चलता नहीं है। तो उसके बारे में थोड़ा सा आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि आपके वो टेक अवे क्या थे, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो थोड़ी सी टिप्स आपकी उनको विल बी एबल टू हेल्प यू आउट। देखो जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे देयर वाज नो हेल्प। तब यूट्यूब शॉर्ट फॉर्म तो होता ही नहीं था, लॉन्ग वीडियोस होते थे सिर्फ। और उस टाइम पे देयर वाज नो वन यू कैन आस्क, क्योंकि ये ऐसी चीज थी जो आम लोग कोई करता ही नहीं था। और आप किसी को पूछोगे यूट्यूब वीडियो कैसे बनाते हैं, उस जब मैंने स्टार्ट किया था इन लाइक 2019, तब बहुत लोगों को यही नहीं पता था यूट्यूब क्या होता है। अब तो इतने स्मार्टफोन्स कॉमन है, सब कुछ है, बट एट दैट टाइम तो खुद ही सीख के सर्च करके खुद ही सब कुछ किया। एंड अगर हम कहें कि पहले के कुछ वीडियोस आपको बनाने पड़ते हैं, फिर आपको पता चलता है कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे चलता है। और वो कुछ वीडियोस में एनीवेयर बिटवीन 50, 60, 100 वीडियोस आपको बस बनाने हैं, दैट टू लॉन्ग वीडियोस जब मैं बनाता हूँ। बट आज के टाइम पे कंटेंट इतना ज़्यादा अवेलेबल है, आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी है कि कंटेंट क्रिएशन कैसा है, क्या है, इसमें वीडियो कैसे एडिट होता है, सब कुछ हमारे टिप्स पे है, सब कुछ आपके फ़ोन में है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कितना कुछ है। बहुत ईजी है सीखना आज के टाइम पे। और एक बिजनेस ओनर बहुत ईजीली उसको कर सकता है, अपने मेन काम के साथ उसको मैनेज कर सकता है थोड़े टाइम में भी। और मतलब बहुत ईजी है आपके टाइम पे करना। अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है, दिस इज द बेस्ट टाइम। ग्रेट। और कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा है। कंपटीशन भी है, बट कंपटीशन है तो मार्केट भी उतनी ज़्यादा होती है। ग्रेट। तो जागृति, I think as you said that you started from the Chandigarh, exploring Chandigarh, I was also and then ये जो पहला आपका वो जिसे बोलते हैं ना वो वीडियो वायरल हुआ, हिट हुआ, तो वो कैसे हुआ, क्या आपने किया, कैसे वो जर्नी रही, क्या क्या आपने एक्सपेरिमेंट किया व्हेन यू मेकिंग वीडियोस एंड क्रिएटिंग द कंटेंट? बहुत साल लग गए। स्टार्टिंग विद लॉन्ग फॉर्मेट किया। इवन जब शॉर्ट्स का टाइम आ गया था तब भी मैं लॉन्ग फॉर्मेट करी थी, क्योंकि मुझे ये शॉर्ट फॉर्म ये सब समझ नहीं आता था। मुझे लगता था कि मेरे पास इतना सब कुछ है, मैं उसको 1 मिनट में कंपाइल करके कैसे डाल सकती हूँ। इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी एंड आई स्टार्टेड लेट। अगर मैं यही चीज़ 1 साल पहले शुरू करती और अपनी मतलब इवॉल्व नहीं की, मैं 1 साल लेट मैंने उसको शुरू किया, तो शायद आज वो नंबर्स कुछ और होते और चीज़ें कुछ और होती। सो यही बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट करते गए, समझ आया ओके दिस थिंग इज वर्किंग एंड आई ट्राइड अपलोडिंग सिमिलर टाइप ऑफ कंटेंट जब मुझे समझ आया। बिकॉज आप फर्स्ट टाइम किसी के सामने जाते हो, किसी को आपका कंटेंट पसंद आता है, वो आपको पहली बार में फॉलो नहीं करता। यू हैव टू मेक देम आप रिलेटेड फील कराना है कि अच्छा ये इंसान तो मेरे जैसा है, ठीक है। वैसा ही कंटेंट आप उनके पास, एक बार कोई लाइक करेगा, एल्गोरिदम उसको पुश करेगा, तो दूसरा, तीसरा, चौथा सेम तरह का कंटेंट बनाओ। फिर उनको मेरा हॉस्टल लिस्ट था जिसको मैंने टारगेट किया था, तो हॉस्टल लाइक में बनाया, पीपल लाइक इट, पर वो फॉलोअर्स नहीं, व्यूज़ आ गए, पहला मिलियन मेरा हॉस्टल पे गया था। तो उसके बाद मैंने उसके बहुत सारे पार्ट्स, आज तो उसके 50-60 पार्ट्स हो गए, तो वो एक पूरा का पूरा मेरे पास ऑडियंस आई। फिर मैंने अलग कैटेगरी को टारगेट करना शुरू किया। फॉर एग्जांपल मैंने बैंक एम्प्लॉयज़ पर वीडियो बनाई, तो धीरे धीरे करके मैंने एक बहुत ही वाइडर ऑडियंस को अपने पास लेके आई, धीरे धीरे करके। एंड ऑब्वियसली एक टाइप का कंटेंट बनाओगे, साइड बाय साइड कुछ और करोगे, तो एग्जिस्टिंग ऑडियंस नई चीज़ें भी पसंद करेगी।
just have to find the way कि उनको present कैसे करनी है चीजें. Seems easy, it's not that easy. You have to be, a lot of thoughtfulness goes into it. How to generate content, कैसी audience है, understanding. वो जो marketing में हम बातें करते हैं कि अपनी audience को समझना, उस audience से relate करना, उस audience के around content create करना, और then उसके बाद उसको किस तरीके से hit and trial है. Because ultimately फिल्म इंडस्ट्री में भी और यहाँ भी ऐसा तो गारंटी तो नहीं है, अच्छे से अच्छी मूवीज पिट जाती हैं, और जो मूवी कई बार लगता है कि चलो ऐसे ही बना देते हैं, वो हिट भी हो जाती हैं. तो ये पता नहीं लगता, ये इंडस्ट्री थोड़ी ऐसी है. और मूवी वाले तो चलो साल में एक मूवी बनाते हैं, यहाँ तो आपको रोज मुझे लगता है उस स्ट्रगल से निकलना पड़ता है. एवरी डे इज ए प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग योरसेल्फ, थिंकिंग न्यू. तो मेरा अगला क्वेश्चन थोड़ा पर्सनल लाइफ के अराउंड है. तो जय एंड जागृति आर एंगेज्ड, तो ये एक्विजिशन है, कोलैबोरेशन है, या ये अपने आप ही हो गया? दोनों है. दोनों. काम ने साथ कर दिया और फिर पता लगा कि इंसान अच्छा है, तो ये लाइफ टाइम कोलैब टर्नआउट हो सकता क्या है. बात है. तो आई थिंक इसे कहते हैं वो लीवरेजिंग ईच अदर स्ट्रेंथ, जो हम कंपनीज में जैसे बोलते हैं ना. तो ग्रेट, आई थिंक योर केमिस्ट्री इज ग्रेट, एंड आई थिंक अभी आप कुछ कंटेंट मैंने देखा कि इधर से उधर ही थोड़ा जा रहा है. एक्चुअली हमने बात जब स्टार्ट करने की थी तो यूज टू टॉक अबाउट ओनली वर्क, क्योंकि ये बात करने को कोई होता ही नहीं था. जो मान लो कंटेंट क्रिएशन में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, यू हैव अ सिमिलर वन जो सेम काम कर रहा है, तो बहुत कुछ होता है हमारे में डिस्कस करने में. तो बहुत टाइम तक तो हमने सिर्फ यही बात पर अभी बात ही नहीं करी. 2 घंटे की फोन कॉल, उसमें 1 घंटा 55 मिनट काम की बात, 5 मिनट अच्छा और क्या है बस. तो स्टार्ट आई थिंक वो वर्क के टिप्स से शुरू हुई. आई थिंक ग्रेट, दैट्स ग्रेट टू सी. और मैं अगला जो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, दैट्स मोर रिलेटेड टू, देखिए फॉलोअर्स हो गए, वॉल्यूम आ गया, लोग देखने लग गए, बट सस्टेन करने के लिए पैसा कमाना बड़ा जरूरी है. मनी इज द ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये जो आपकी जर्नी थी, क्योंकि जब आप छोटे स्केल पे होते हो तो एक्सपेंसेस भी नहीं होते आपके, आप मैनेज कर लेते हो. एक स्टेज के बाद आपको लगता है कि एक सेटअप चाहिए. तो कैसे आपने सेटअप बनाया और कैसे आपने उसकी जय मोनेटाइजेशन का प्रोसेस चालू किया? हाउ डिड वर्क? देखो, आप किसी भी चीज को ना, चाहे वो कोई बिजनेस है, चाहे कंटेंट क्रिएशन है, इफ यू सी दैट इन लॉन्ग टर्म, किसी चीज को लॉन्ग टर्म सस्टेन करना चाहते हो तो आप शॉर्ट टर्म का नहीं सोचते हो. अगर मान लो मैंने आज तक कुछ भी यहाँ से अर्न किया है, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं यहाँ से बचाऊंगा. मैंने सोचा जितना लगेगा मैं लगाऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो हमारे ऑडियंस के फायदे के लिए है, और ऑडियंस खुश है तो अपने आप ही आप बिजनेस ओनर भी खुश ही रहता है. तो अगर कुछ भी, अगर मेरे को लग रहा है कि मेरे को ऑडियंस को कोई नई चीज़ दिखानी है, टीम बड़ी करनी है तो टीम बड़ी कर सकते हैं, स्टूडियो पे बड़ा करना है तो और नेक्स्ट चैनल खोलने हैं, तो वो जितना आप एक्सपैंड करोगे उतना ऑडियंस को भी अच्छा लगता है कि जिनको हमने इतनी पहले फॉलो किया था, आज वो और अच्छा कर रहे हैं और बड़ी चीज़ें कर रही हैं. तो ये है. एंड मेरे ख्याल से बिजनेस में स्पेंड करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए. अभी मोनेटाइजेशन, एंडोर्समेंट भी है, कुछ आई थिंक एडसेंस भी होगा. इट्स ए बुके ऑफ यस, मल्टीपल स्ट्रीम्स. एक कंटेंट क्रिएटर के पास जो मेन, बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के, पर जो मेन 3 तरीके हैं. फर्स्ट इज एड रेवेन्यू. अगर आप यूट्यूब पे कुछ भी अपना वीडियो अपलोड करते हो तो यूट्यूब आपके साथ एक परसेंटेज शेयर करता है उस वीडियो से जो रेवेन्यू आता है. सेकेंड इज ब्रांड्स. आप किसी ब्रांड के साथ अगर पार्टनरशिप करते हो तो ब्रांड आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में वो बताता है, और आप अपने तरीके से, अपने हिसाब से उस प्रोडक्ट का अपने ऑडियंस तक पहुंचाते हो. थर्ड इज एफिलिएट, कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आप, मान लो मैंने वीडियो बनाया कि अमेज़न से कुछ भी ऑर्डर करके मैंने इसको बताया कि ये गैजेट आता है, इसको आप खरीद सकते हो, और इसका बाइंग लिंक मेरी कैप्शन, तो वो कैप्शन से अगर कोई भी खरीदेगा तो उसका कुछ कमीशन अमेज़न आपको देगा. जब ये कोई वीडियो कोई मिलियंस में जाते हैं कुछ, तो वो दैट बिकम्स अ ह्यूज नंबर. तो ये 3 मेन तरीके हैं, इसके अलावा बहुत सारे हैं. जी, तो जागृति आपने कैसे मोनेटाइजेशन शुरू किया? हाउ डिड इट स्टार्ट? It all started from brand deals और धीरे धीरे करके एक्सपैंड किया, टीम रखी. मतलब मेरा कंटेंट तो एक रिलेटेबल फैमिली कंटेंट है, बट वी हैव अ होल स्टूडियो जिसमें हमने बेडरूम का सेटअप बना रखा है, किचन बना रखी है, वर्क स्टेशन है, हमारा भी टीम वहाँ पे बैठ के काम करती है, स्क्रिप्ट्स लिखते हैं,
ठीक है, बाहर से लोग काम कर रहे हैं, तो इसको स्केल अप करने के लिए यही किया कि इसको एक पहले हॉबी की तरह शुरू किया था, बट एक प्रॉपर प्रोफेशन की तरह ही इसको अपना लिया। एंड नाउ हम डेली काम करते हैं, इवन संडेज को भी काम करते हैं। हमको बोलते हैं जैसे संडे का हुआ है, मैं ऑनेस्टली बताऊं, और मैं आपको एक और चीज बताऊं, जब मैंने स्टार्ट किया था पहला वीडियो जब मैंने बनाया, मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था कि इसमें कितना पैसा बनता है, कहाँ से पैसा बनता है, ब्रांड्स क्या होते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। आई जस्ट यूज्ड टू एंजॉय इट, और वो अपने आप धीरे धीरे शुरू होती जाती है। अगर आप किसी काम में आपका इतना मन लगता है तो बिना पैसे का सोचे उसको जाना चाहिए। देखिए, जब हम एंडोर्समेंट करते हैं, बिकॉज पीपल बिलीव इन यू, पीपल फॉलो यू, तो वो एक सिर्फ सेलिब्रिटी का एंगल नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एंगल भी है। क्योंकि आपने अगर कोई गलत चीज़ कह दी, किसी गलत चीज़ को प्रमोट कर दिया, तो हो सकता है ये डबल एज स्वॉर्ड है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, तो जब आप किसी एंडोर्समेंट को पकड़ते हैं तो कितना आप ध्यान रखते हैं, किस तरीके के आप ड्यू डिलिजेंस करते हैं, क्योंकि आप हर किसी को तो एंडोर्स नहीं कर सकते। तो क्या कुछ किस तरीके से आप सोचते हैं उस डायरेक्शन में? देखो, अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई ब्रांडिंग आती है, कोई ब्रांड आता है कि मेरा ये प्रोडक्ट है, आपको इसको अपने ऑडियंस को दिखाना है, बहुत सारे ब्रांड आते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं कि